चलो मुझे बताओ, we were doing I think sum number 4, right? How many accounts we are having in sum number 4? Page number 34. Villa? Page 34, sum number 4. Please pay attention. Prepare the necessary ledger accounts. बोल के छोड़ दिया. Villa? So how many accounts we need to make? Starting with I think cash. लिखते जाओ. सबसे पहला you have cash account, then bank account, correct? विवेक account, जनरल से देख रहा हूं मैं. Then you have sales account. मिला क्या? Hello. What else you have then? Purchase account. You got that? Then Raja account. Then building account. Then what? और क्या है? Commission received account. Yes. लॉस ऑन सेल का बनाया था हमने यार एक सब. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. और क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट. दैट्स योर 9th अकाउंट. ओके. 9 अकाउंट्स बोले थे मैंने, 3 ऑन ईच साइड. सबमिट 8 पर्टिकुलर JF अमाउंट एंड दिए 2 डेबिट्स एंड क्रेडिट्स on left hand side and right hand side top. Is it clear? Villa? Okay. Let's start. 9 accounts, right? What is ledger? You remember what is ledger? Ledger is the book of secondary, from where you post the transaction from journal. And why do we have this secondary book? The main reason being, it is showing your data date wise as well as account wise. एक एक अकाउंट में क्या क्या हो रहा है वो आपको इजीली पता चल जाता है with the help of what? Ledger. एक एक अकाउंट की डिटेल्स आपको पता चल रही है with the help of ledger. And every account is divided into 2 sides. Left hand side is called as debit and right hand side is called as credit. Remember, left hand side debit, right hand side credit. हर एक का डेबिट क्रेडिट का लॉजिक अलग है. अभी कैश है, डेबिट हुआ मतलब पैसा बड़ा और क्रेडिट हुआ मतलब पैसा घटा, कैश घटा, एसेट है. वही अगर विवेक होता तो यू वुड हैव बीन डेबिट हुआ मतलब डेटर, क्रेडिट हुआ मतलब क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट. वही परचेज होता, डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस बड़ा, क्रेडिट हुआ मतलब एक्सपेंस घटा. सेल्स है, इनकम है, डेबिट हुआ मतलब इनकम घटा और क्रेडिट हुआ मतलब इनकम बढ़ा. Incomes get credited, so they increase, and incomes get debited, so they decrease. So accordingly, you have to fit the rules. Okay. Asset, liability, income, expense. This is the debit side. This is the credit side. Sorted. Now, how many parts of posting in ledger? You have got 3 parts of posting. What are the 3 parts we discussed in the last lecture? Opening balance, posting and closing balance. What are the 3 steps? Opening balance, posting and closing balance. Remember? So first you start with opening balance. You have been given a few accounts of opening balance. Can you see that? Balances are 1/1/2010. Are these opening or closing? Opening balance. So cash will have which balance? Debit or credit? Why you remember that golden rule I gave you for balances? All assets and all expenses will always have which balance? Debit balance. And all incomes and all liabilities will always have credit balance. Why all assets and expenses debit? उनमें कौन सा साइड बड़ा होता है हर बार? डेबिट साइड. और इनकम और लायबिलिटी में हर बार क्रेडिट साइड. वो उसका रिवर्स जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कोई भी सिचुएशन. So all assets and expenses will have which balance?
डेबिट बैलेंस. सो कैश विल हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट. बैंक ओडी दिया है, इट इज बैंक ओडी. तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखने का ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट. सो इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. का मतलब क्या है? बैंक ओडी का मतलब याद है आपको? अकाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा ड्रॉ हो. हाँ एग्जैक्टली, तो लायबिलिटी हो गया. तो बैंक एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ड्यूअल बैलेंस आ सकता है. डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है. क्यों आ सकता है? डेबिट बैलेंस मतलब आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है. क्रेडिट बैलेंस मतलब आपने बैंक से ज्यादा निकाल लिया, आपको देना बाकी है. तो कैसे पता चलेगा बैंक में डेबिट है या क्रेडिट? कुछ नहीं दिया है ना, तो बैंक इज ऑलवेज डेबिट, इट्स आवर एसेट. बट बैंक क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट. बाजू में क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट. तो देन इट विल हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस. नाउ इट बिकम्स अ लायबिलिटी. मतलब ये हमारा पैसा पड़ा नहीं है बैंक पर, हमें बैंक को देना बाकी है. ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन से अकाउंट्स को मिलती है? सेविंग्स, करंट, एफडी, किसको मिलती है? करंट. अदर्स डोंट गेट दिस फैसिलिटी. तो ओडी का मतलब ज्यादा विड्रॉल, मतलब ज्यादा पेमेंट्स. क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट. तो बैंक is an asset, but bank overdraft becomes a liability. Liability will have credit balance, buy balance, PD. Is it clear? Purchases, debit balance or credit balance? Why? Expense. Sales? Why? Income. राजा और विवेक कर सकते हो आप डिसाइड? पर्सनल अकाउंट है तो इसके लिए दिया होगा. Raja is debit and Vivek is credit. So it means what? Raja is your debtor and Vivek is your credit. Building asset, so debit. And commission received credit because debit. So let's write the balances. What should I write in cash? 2 की बाय 2 balance BD के C. BD. This is opening balance. So cash में 2 balance BD. I think it will be 7,000. Is that right? And all opening balance will have a date of 1/10, first day of the year. Okay, bank overdraft दिया है. OD is overdraft. So should I write 2 balance की buy balance? Why? Overdraft. So buy balance BD. Buy balance BD 8,500. 8,500. Is that clear? Purchases क्या होगा? 2 की बाय purchases ये रहा because it's an expense. So 2 balance BD. कितना purchases are 4,000. Okay. What about sales? 2 की बाय So buy balance BD 6,000. Okay, on 1/1/2010. Raja is DR. Raja is DR मतलब क्या? 2 balance B 2,000. मतलब राजा is your debtor, इससे पैसा लेना बाकी है. विवेक में CR दिया हुआ है 3,000. So debit or credit? Credit. Buy balance BD 3,000. Buy balance BD 3,000. Is this clear? Building. Debit or credit? Why? Asset. Building debit. ये बैलेंसेस कहाँ से टपक रहे हैं? पिछले महीने, प्रीवियस मंथ में ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, वहां के क्लोजिंग बिकम यहाँ के ओपनिंग. So that indicates it's not your first month, it's your continuing month. And commission received will have its balance, credit balance. So buy balance B. ऐसे हर महीने, कितने महीनों तक चलेगा ये प्रोसेस? बैलेंस 12 महीने, जब तक फाइनल अकाउंट बनता नहीं है तब तक. ओके, फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज होता है. क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बात. समझ में आया? आता बैलेंसेस लिख दिया. अभी पोस्टिंग करते हैं.
Can you directly post a combined entry? Split. First split and then post. Is that right? Split and post. Split and post. So, check the first entry. How will you split it? Cash, bank, Vivek to sales. क्या होगा split? Cash to sales, bank to sales, Vivek to sales. करो. Cash to sales is how much? 2000. कैसे करने का? Cash में to sales account और sales में by cash. Hope this is comfortable now. Cash में to sales, sorry. Cash में to sales और sales में by cash. Cash debit हो रहा है ना, तो cash के left में और sales credit हो रहा है, तो sales के right, credit से. बैंक के लिए नया नहीं, वही बैंक बॉडी सेम होगा. बैलेंस विल चेंज, डेबिट का खाली क्रेडिट होता है, बाकी ट्रांजैक्शन इसी में करते हैं. तो कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाय कैश. व्हाट नेक्स्ट? यू हैव गॉट बैंक टू सेल्स 1000. सो बैंक में क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट और सेल्स में आएगा बाय बैंक. बैंक में टू सेल्स और सेल्स में बाय बैंक. बैंक में डेबिट साइड, सेल्स में क्रेडिट साइड. Then you have Vivek to sales. How will you do that? Vivek to sales. Vivek में two sales. How much is that? 500. और सेल्स में बाय. ये एंट्री का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning? कैश, बैंक, विवेक बड़ा, सेल्स मतलब इनकम. तो हुआ क्या मतलब? What is the meaning? Sold goods. Partly on cash, partly on credit to Vivek. Partly on cash, partly on credit. Purchase to cash to bank to Raja. How will you split it? Purchase to cash, purchase to bank, and purchase to Raja. How much is purchase to cash? How will you do that? Purchase में to cash और cash में by purchase. Purchase में to cash, cash में by purchase. Is that right? Purchase debit हो रहा है, cash credit हो रहा है. Purchase to bank. How should I do it? Purchase to bank. Purchase में to bank account 700 और बैंक में what? By purchase. बैंक बॉडी अकाउंट सेम ही है, खाली ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस. बैलेंस उल्टा हो गया. करेक्ट? हेलो, मिला? क्या हो गया? कुछ से करो. परचेज टू कैश, परचेज टू बैंक, परचेज टू राजा कैसे कर देगा? परचेज में टू राजा. $500 और राजा में भैया, राजा भैया, ये राजा में बाय परचेज. ऑलराइट, सॉर्टेड. बिल्डिंग टू क्या? अच्छा, उसका मतलब क्या है वो परचेज वाले एंट्री का मीनिंग? परचेज गुड्स पार्टली ऑन कैश, पार्टली ऑन क्रेडिट. मिला? हेलो. बिल्डिंग टू कैश टू बैंक टू राजा. बताओ, व्हाट इज द स्प्लिट? बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू बैंक एंड बिल्डिंग टू राजा.
तो बिल्डिंग टू कैश 1000, कैसे करोगे बिल्डिंग टू कैश 1000? बिल्डिंग में टू कैश, डेबिट साइड में टू कैश 1000, और कैश में क्या? बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग में टू कैश और कैश में बाय बिल्डिंग। ओके, एंड बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग में व्हाट विल यू राइट? बिल्डिंग में टू बैंक, एंड बैंक अकाउंट में you'll write what? Buy building. And the last one is building to Raja. So building में to Raja, and what else? Raja में what is that? Buy building. Buy building. Is this clear? वो लास्ट वाला बता रहा हूँ, वही मेन। कैश टू कमीशन रिसीव्ड इट इज 2000. कैश टू कमीशन रिसीव्ड इट इज 2000. हाउ विल यू डू इट? कैश में टू कमीशन रिसीव्ड, कैश में टू कमीशन रिसीव्ड, और व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंट्री? कमीशन रिसीव्ड में बाय कैश। कैश डेबिट हो रहा है, कमीशन क्रेडिट हो रहा है, कैश बढ़ा, कमीशन इनकम बढ़ा। दिस इज ऑन 12. व्हाट? पोस्टिंग कैश टू कमीशन रिसीव, तो कैश डेबिट और कमीशन रिसीव क्रेडिट, तो कैश के डेबिट साइड पे टू कमीशन, एंड कमीशन रिसीव में क्रेडिट साइड पे बाय कैश। डेबिट हो रहा है उसमें टू, क्रेडिट हो रहा है उसमें टू, दूसरा पहले वाले में बाय पहला। इज इट क्लियर? हेलो, अभी 20th वन, ये इंपॉर्टेंट है। 20th वन का पहले स्प्लिट एंट्री क्या होगा? ये मिल गया तो सब काम आसान है। हाउ विल यू स्प्लिट? कैश बैंक टू बिल्डिंग एंड विवेक टू प्रॉफिट ऑन सेल। होना चाहिए। तो बैंक पे भी तो आ सकता है प्रॉफिट। कैश बैंक में हाफ ऑफ कर दीजिए। कैश बैंक में हाफ ऑफ कर दीजिए। नो थिंक, बोलो। अमाउंट कैश बैंक सॉरी और प्रॉफिट ऑन सेल्स अमाउंट सेल। नहीं, ये वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। वो जब तुम एक्सपेंस पे कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे वो काम नहीं है। सोचो अभी, मुझे एक बात बताओ, आपने एक एंट्री अभी पिछले समय की, देखो वो एंट्री थी थर्ड सम की फिफ्थ वाली 511। थर्ड सम की फिफ्थ वाली एंट्री देखो, क्या लिखा था? कैश बैंक संजय लॉस ऑन सेल टू मशीन। भैया हाउ डिड यू स्प्लिट इट? कैश टू मशीन, बैंक टू मशीन, संजय टू मशीन, लॉस ऑन सेल टू मशीन। अब सोचो, देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, इधर ही गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स की। सपोज आपका एंट्री है ये, कैश लॉस ऑन सेल टू बिल्डिंग 5000, 2000 एंड 7000, मीन्स 7000 का बिल्डिंग आपने 5 में बेचा, 2 का लॉस हुआ। इसका स्प्लिट क्या होगा?
cash to building and loss on sale to building. कैश टू बिल्डिंग कितना 5 और लॉस ऑन सेल टू बिल्डिंग कितना 2000. ये नॉर्मल है, ये तो किया हुआ है आपने. तो मैंने क्या लिखा, कैश टू बिल्डिंग 5 एंड लॉस ऑन सेल टू बिल्डिंग 2000. मतलब ये लॉस ऑन सेल के सामने कैश लिखा है मैंने, आगे पीछे कुछ नो. इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. लॉस ऑन सेल इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस. इट कैन नेवर बी लॉस ऑन सेल टू कैश, क्योंकि लॉस किसी को आप कैश में पे नहीं कर रहे हो. जिससे इट इज सिमिलर टू बैड डेट्स या गुड्स लॉस बाय फायर. इसमें क्या हो रहा है, कैश नहीं जा रहा है, कोई और एसेट कम हो रहा है. मतलब सीन क्या था, मेरा बिल्डिंग 7 का था, मेरा बिल्डिंग 7,000 का था. मैं बेचने गया तो दुकान वाला जो भी बिल्डर था उसने बोला कि नहीं, ये 7,000 में एक्सेप्टेड नहीं है, इसका वैल्यू कितना है 5. इसका वैल्यू कितना है 5. तो पहले बिल्डिंग 7 से हो गया 5, घट गया. बिल्डिंग 7 से हो गया 5, तो बिल्डिंग घटा तो लॉस और गेन. लॉस, बिल्डिंग घटा ना. जैसे डेप्रीसिएशन, एसेट घटा, वैसे बिल्डिंग का यहाँ पे वैल्यू घटा तो बिल्डिंग घटा. एंड लॉस बढ़ा तो लॉस बढ़ा तो डेबिट, और बिल्डिंग घटा तो क्रेडिट. और वो 7 से हो गया 5, और फिर वो 5 का बिल्डिंग मैंने दिया और 5,000 रुपया कैश लिया. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो बिल्डिंग 7 का था 7 था. जैसे बेचने गए वैल्यू हो गई 5, 7 से हो गई 5. तो पहले क्या किया मैंने, रिकॉर्ड लॉस, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू अभी 7 नहीं रहा, अभी कितना हो गया 5,000. एंड दिस सडन ड्रॉप इज नॉट डेप्रीसिएशन. दिस सडन ड्रॉप इज कॉल्ड एज लॉस. What is depreciation? Constant decrease in the value over the period of time when you are using the asset. दोनों का एंट्री सेम है. डेप्रीसिएशन का एंट्री मैंने बताया था दैट डे, if you remember. डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता था, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. लॉस का भी सेम एंट्री है. तो पहले क्या हुआ, 7 का हो गया 5, तो लॉस बढ़ा और एसेट घटा. तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. फिर वो बिल्डिंग 5 का हो गया, अभी 5 का बिल्डिंग है और कैश आ गया, तो कैश टू बिल्डिंग दैट इज 5,000. इज दिस क्लियर? सेम वे ओवर हियर. व्हाट इज हैपनिंग, बिल्डिंग इज सोल्ड एट लॉस और प्रॉफिट? प्रॉफिट. हमारे सिचुएशन में प्रॉफिट है ना, यहां पे लॉस है, अभी प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट का एक छोटू एग्जांपल ले लो. सपोज ये होता कैश टू बिल्डिंग टू प्रॉफिट, कैश टू बिल्डिंग टू प्रॉफिट. इसमें क्या हुआ है बता सकते हो? 5 का बिल्डिंग 7 में बेचा, तो हुआ क्या होगा, पहले 5 की बिल्डिंग थी, जैसे बेचने गए कितनी हो गई 7 हो गई.